کہانی کے آغاز میں ہم ایک شخص سے ملتے ہیں جس کا نام ہے وکٹر۔ وہ اپنی گرل فرینڈ میلانی کو اپنے گھر لے کر آتا ہے۔ وکٹر معاشرے میں ایک دولت مند اور عزت دار انسان کے طور پر جانا جاتا ہے۔ جب میلانی اس کے عالی شان محل نما گھر کو دیکھتی ہے تو اس کے چہرے پر خوشی اور حیرت کی چمک ابھر آتی ہے۔ وکٹر مسکراتے ہوئے اسے پورا گھر گھماتا ہے اور کہتا ہے، میرے پاس تمہارے لیے ایک خاص سرپرائز ہے۔ پھر وہ میلانی کی آنکھوں پر پٹی باندھ دیتا ہے، اسے سیڑھیاں چڑھا کر اوپر ایک چھوٹے سے کمرے میں لے جاتا ہے اور پھر پٹی ہٹا دیتا ہے۔ میلانی اسی جگہ پریشان ہو جاتی ہے جیسے اس کا خون جم سا گیا ہو۔ کمرہ ایک ٹارچر سیل ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ وکٹر ذہنی طور پر بیمار ہے۔ اسے ایک بری عادت ہے، وہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتا ہے، پھر انہیں تشدد اور اذیت کا نشانہ بناتا ہے۔ میلانی پہلے تو یقین نہیں کرتی، مگر وکٹر زبردستی اصرار کرتا ہے کہ وہ کھیل میں شامل ہو جائے۔ وہ اسے ایک عجیب سے بیڈ پر لیٹاتا ہے اور اس کے ہاتھ پاؤں مضبوطی سے باندھ دیتا ہے۔ پھر وہ ایک ہینڈل گھماتا ہے جس سے میلانی کا جسم کھینچنے لگتا ہے۔ میلانی ایک خوفناک چیخ مارتی ہے، اس کا جسم شدید درد سے کانپ اٹھتا ہے۔ وکٹر ایک ٹھنڈی سرد آواز میں کہتا ہے، یہ تو صرف پہلا لیول ہے۔ ڈری ہوئی میلانی آنسوؤں میں بھیگ کر التجا کرتی ہے، بس کرو، میں مزید نہیں سہ سکتی۔ اتنے میں اچانک دروازہ کھلتا ہے اور وکٹر کی پتنی اندر آ جاتی ہے۔ اس اچانک مداخلت سے وکٹر چونک جاتا ہے اور غلطی سے ہینڈل زیادہ گھما دیتا ہے۔ ایک خوفناک آواز آتی ہے، میلانی کی ایک ٹانگ ٹوٹ چکی ہوتی ہے۔ کچھ دن بعد میلانی وکٹر کے خلاف مقدمہ دائر کرتی ہے، لیکن وکٹر کا ایک دوست اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، دیکھو، اس کیس کو چھوڑ دو، تمہیں کچھ نہیں ملے گا، تمہارے پاس کسی اعلیٰ وکیل کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں۔ وہ حتیٰ کہ اسے $10,000 کی پیشکش کرتا ہے۔ مایوس اور بے بس میلانی پیسے لے کر چلی جاتی ہے۔ بعد میں وہی وکیل وکٹر کے پاس پہنچتا ہے۔ وکٹر اسے مسکراتے ہوئے شکریہ ادا کرتا ہے اور اپنے ذاتی معاملات بھی بیان کرتا ہے۔ گھر واپس آ کر ہم دیکھتے ہیں کہ اب وکٹر کی زندگی تباہی پر آ پہنچی ہے، یعنی کہ اس کی پتنی اس کی بیمار عادتوں سے تنگ آ چکی ہے۔ وہ اب مزید برداشت نہیں کر سکتی کہ وہ ہر بار کسی مہیلا کو لاتا ہے اور اسے اذیت کا نشانہ بناتا ہے۔ ایک موقع پر وکٹر اپنی پتنی کو لبھانے کی کوشش کرتا ہے، مگر غلطی سے اس کی گردن پکڑ لیتا ہے۔ اسی رات وکٹر ایک بڑی پارٹی رکھتا ہے۔ شراب، جوا، ہنگامہ، ہر چیز اپنے عروج پر ہے۔ جب اس کی پتنی اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے، وکٹر اسے سب کے سامنے ذلیل کرتا ہے اور پارٹی سے باہر نکال دیتا ہے۔ دکھی دل کے ساتھ وہ اپنے کمرے میں واپس آتی ہے، مگر اسی وقت وکٹر کا دوست رومن چھپکے سے اندر آتا ہے۔ وہ اسے بوسہ دیتا ہے۔ اب یہاں حقیقت سامنے آتی ہے، دراصل وہ دونوں کافی عرصے سے خفیہ تعلق میں ہیں۔ ادھر وکٹر جوا کھیل کر بری طرح ہار جاتا ہے، غصے میں آ کر اپنے کارندے پر تشدد کرتا ہے۔ بعد میں جب وہ پتنی کے کمرے کے دروازے پر آتا ہے، وہ اسے آواز دیتا ہے۔ الزبتھ جلدی سے رومن کو الماری میں چھپا دیتی ہے۔ دروازہ کھلتا ہے، وکٹر اندر آتا ہے اور کچھ عجیب سا کرنے لگتا ہے۔ الزبتھ اسے دھکا دے کر پیچھے ہٹاتی ہے اور کہتی ہے، تم بالکل اپنے پتا جیسے ہو۔ وکٹر کے آنکھوں میں آنسو بھر آتے ہیں کیونکہ اس کا پتا واقعی ظالم انسان تھا۔ الزبتھ اسے روتا دیکھ کر رومن کو الماری سے نکالتی ہے اور اس کے ساتھ گھر چھوڑ دیتی ہے۔ اگلے دن وکٹر پھر اپنے جوئے کے کھیل میں مصروف ہوتا ہے۔ الزبتھ لاپرواہی سے کہتی ہے، میں کچھ دیر کے لیے باہر جا رہی ہوں۔ وکٹر بے دلی سے کہتا ہے، جاؤ۔ وہ باہر رومن سے ملتی ہے اور کہتی ہے، اگر حالات ایسے ہی رہے تو ہمارا رشتہ کیسے چلے گا؟ رومن جواب دیتا ہے، اگر وکٹر ختم ہو گیا تو ساری جائیداد تمہارے نام ہو جائے گی، پھر ہم شادی کر کے سکون سے رہ سکتے ہیں۔ اسی شام الزبتھ رومن کو کھانے پر بلاتی ہے۔ رومن آتا ہے، مگر اس کی دل میں قتل کا منصوبہ پکا ہوتا ہے۔ وہ ایک خطرناک شخص سے ملتا ہے جو اسے ایک زہریلی بوتل دیتا ہے اور خبردار کرتا ہے، یہ زہر انتہائی مہلک ہے، ایک گھونٹ اور سب کچھ ختم۔ الزبتھ وکٹر کو بتاتی ہے، رومن آج کھانے پر آ رہا ہے، ذرا تیار ہو جاؤ۔ وکٹر ہنستا ہے اور کہتا ہے، وہ میرا دوست ہے، کوئی مہمان نہیں۔ بعد میں جب رومن آتا ہے، الزبتھ گرم جوشی سے اس کا استقبال کرتی ہے۔ موقع پا کر رومن پوری بوتل کا زہر وکٹر کے کھانے میں ڈال دیتا ہے۔ جب الزبتھ کھانا پیش کرتی ہے، وکٹر اچانک چونک کر کہتا ہے، میرے چاپ اسٹکس کہاں گئے؟ وہ انہیں لینے اٹھتا ہے تو اسی دوران ٹیبل پر پڑی ایک مشکوک بوتل دیکھ لیتا ہے۔
शक में पड़कर पूछता है, ये बोतल किसकी है? रोमन घबरा कर झूठ बोलता है, कल रात तुम्हारी पार्टी थी, शायद कोई मेहमान भूल गया हो। और उसके बाद विक्टर खाना खाने लगता है, मगर अचानक जमीन पर गिर पड़ता है। एलिजाबेथ हक्का बक्का रह जाती है। क्या वो मर गया है? रोमन स्पार्ट लहजे में कहता है, हाँ। वो दोनों तुरंत पुलिस को फोन करते हैं। अफसरान आकर लाश का मुआयना करते हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आता है और कहता है, मुझे पोस्टमार्टम करना होगा। रोमन तुरंत एतराज करता है, नहीं, विक्टर की आखिरी ख्वाहिश थी कि कोई उसके जिस्म को ना छुए। डॉक्टर मशकूक नजरों से देखता है, ये कुछ गैर मामूली लगता है, मुझे ये अदालत में ले जाना होगा। वो अपने असिस्टेंट को हुक्म देता है कि लाश को फ्रीजर में रख दो और वादा करता है कि अदालती हुक्म लेकर पोस्टमार्टम जरूर करेगा। उसी रात रोमन एलिजाबेथ के साथ रुकता है। उसे उसकी जमीर की चुभन तड़पा रही है। आखिर विक्टर उसका बचपन का दोस्त था। एलिजाबेथ उसे तसल्ली देती है, अब सारी जायदाद हमारी है, हम आखिरकार एक साथ रह सकते हैं। अगले दिन रोमन विक्टर की लाश घर लाता है ताकि तदफीन की तैयारी हो सके। उसी लम्हे मेलानी वहां आती है, गुस्से में नफरत से भरपूर। वो विक्टर की लाश पर थूक देती है और बगैर कुछ कहे चली जाती है। जैसे ही लोग विक्टर की लाश दफनाने वाले होते हैं, दरवाजा जोर से खुलता है। डॉक्टर हाथ में अदालत का हुक्मनामा लिए पहुंच जाता है। रोमन के चेहरे पर घबराहट छा जाती है। डॉक्टर विक्टर की लाश कब्जे में ले लेता है और रोमन बेबस नजरों से सब कुछ देखता रह जाता है। एलिजाबेथ और रोमन दोनों शदीद खौफजदा हैं। अगर पोस्टमार्टम हो गया तो सच्चाई बेनकाब हो जाएगी। रोमन एक के बाद एक कॉल करता है, मदद के लिए मिन्नतें करता है, मगर कोई उसका साथ नहीं देता। जबकि दूसरी जानिब वो शख्स जिसने रोमन को जहर की बोतल दी थी, बार में विक्टर की मौत की खबर पड़ता है। हैरान होकर वो तुरंत रोमन को फोन करता है, सुनो, मुमकिन है विक्टर मरा नहीं। मैंने जो दवा दी थी वो जिस्म को मफलूज करती है, मरने का धोखा देती है, मगर इंसान सब कुछ सुन और महसूस कर सकता है। रोमन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। एलिजाबेथ पूछती है, किसका फोन था? मगर वो झूठ बोल देता है, कुछ नहीं, बस गलत नंबर था। दिखाया जाता है कि डॉक्टर विक्टर का पोस्टमार्टम शुरू करने ही वाला होता है कि अचानक उसे उसकी बीवी की कॉल आती है, जो गुस्से में चीखती है, आज हमारी सालगिरह है, तुम भूल गए हो ना? शर्मिंदा होकर डॉक्टर कहता है, ओ माय गॉड, माफ करना, मैं अभी आता हूँ। वो अपने असिस्टेंट को हुक्म देता है कि लाश वापस फ्रीजर में रख दो, मैं सुबह पोस्टमार्टम कर लूंगा। डॉक्टर के जाते ही असिस्टेंट अपने दोस्तों को फोन करता है। वो तुरंत पहुंच जाते हैं, जोश से कहते हैं, चलो आज हम खुद सर्जरी की प्रैक्टिस करते हैं। असिस्टेंट खबरदार करता है, विक्टर की लाश को मत छेड़ना, डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है। मगर दोस्त हंसते हुए कहते हैं, अरे आओ, अभी तो जिस्म ताजा है। मगर हकीकत में विक्टर जिंदा है, मफलूज और बेहरकत, मगर पूरी होश में है। वो सब कुछ सुन रहा है, महसूस कर रहा है। दोस्त हंसते हुए इसकी आंखें बंद करते हैं और इसका पेट फाड़ देते हैं। एक शख्स अंदर हाथ डालकर उसकी आंखें बाहर निकाल लेता है। अचानक विक्टर की आंखें खुल जाती हैं। वो सब चौंक जाते हैं, मगर जल्दी से कहते हैं, ये तो आसाबी रिफ्लेक्स है, और आंखें दोबारा बंद कर देते हैं। थोड़ी देर बाद रोमन मुर्दा खाने पहुंचता है। असिस्टेंट घबराकर झूठ बोलता है, डॉक्टर लाश ले गए हैं। वो उसे डॉक्टर का नंबर पकड़ा देते हैं और जल्दी से बाहर निकल देते हैं। लेकिन अंदर विक्टर का जिस्म फिर से हरकत करने लगता है। उसका हाथ अचानक ऊपर उठता है और आरे से टकराकर उंगलियां कट जाती हैं। कमरे में दहशत फैल जाती है। उन्हें अंदाजा हो जाता है कि वो एक जिंदा इंसान को काट रहे थे। खौफ के मारे वो उसे नींद का इंजेक्शन लगा लेते हैं और वो फैसला करते हैं कि उसे जिंदा दफन कर दें, वरना सब कुछ तबाह हो जाएगा। वो उसे जंगल में घसीट कर ले जाते हैं, एक गहरा घड़ा खोद देते हैं और दफनाना शुरू करते हैं। मगर विक्टर अचानक आंखें खोल देता है। गुस्से, दर्द और वहशत में पागल हो चुका होता है। वो चाकू से एक लड़की की आंख में घोंप देता है, जो कि मौके पर मर जाती है। फिर वो असिस्टेंट का जबड़ा तोड़ देता है और आखिरी दोस्त को भी बेरहमी से मार डालता है। फिर सुबह विक्टर उनकी कार तलाश करता है, कुछ अद्वियात और हथियार उठाता है और घर की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में उसे मिलानी नजर आती है, वही लड़की जिसने उसकी लाश पर थूक दिया था। विक्टर के चेहरे पर इंतकाम की आग भड़क उठती है। वो उसका पीछा करता हुआ उसके घर पहुंचता है। दूसरी जानिब रोमन एलिजाबेथ को बताता है कि विक्टर की लाश हॉस्पिटल से गायब है। एलिजाबेथ सांस रोक लेती है, चेहरे पर खौफ के आसार हैं। रोमन आहिस्तगी से कहता है कि वो अब भी जिंदा है। उसी वक्त विक्टर मिलानी को एक बेड पर बांध देता है। उसकी आवाज जहरीली और सर्द है।
मैं तुम्हें अजियत देकर मारूंगा। वो फोन उठाता है और अपने ही घर कॉल करता है। फोन रोमन उठाता है। विक्टर की आवाज सुनकर रोमन जगह पर साकित रह जाता है, मगर वो झूठ बोलता है, ये गलत नंबर था। फिर विक्टर अपनी धमकी पूरी करता है। वो मिलानी को बेरहमी से कत्ल कर देता है। आखिरकार रोमन टूट जाता है और एलिज़ाबेथ से एतराफ करता है, विक्टर अब भी जिंदा है। एलिज़ाबेथ गुस्से में आ जाती है और कहती है, बकवास बंद करो, और अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद बाहर कार की टायर चरचराती है। रोमन भागकर खिड़की से देखता है, वो विक्टर की कार है। अंदर से अजीब धीमी चीखों की आवाजें आती हैं। रोमन दौड़कर अंदर जाता है और देखता है एलिज़ाबेथ बंधी हुई है। वो खौफ से चीखता है, उसे छोड़ दो विक्टर, प्लीज। विक्टर सर्द मुस्कुराहट के साथ कहता है, ठीक है, अगर तुम मेरी बात मानो तो। वो रोमन के एक अजियतनाक मशीन पर बांध देता है और एलिज़ाबेथ से कहता है, हैंडल घुमाओ। एलिज़ाबेथ कांपती हुई हैंडल पकड़ती है। रोमन का जिस्म दर्द से चीखने लगता है। मायूस होकर एलिज़ाबेथ चिल्लाती है, ये सब रोमन ने किया, इसी ने मंसूबा बनाया था, मैं बेकसूर हूँ। मगर विक्टर पागल हो चुका होता है। वो हैंडल पूरा घुमा देता है और रोमन का जिस्म फट जाता है। जैसे ही वो एलिज़ाबेथ की तरफ बढ़ता है, एलिज़ाबेथ छुरी उठाकर उसके पेट में घोंप देती है। इसके पेट से वही जख्मी आंतें बाहर निकल आती हैं। फिर वो कुल्हाड़ा उठाकर उसके सर पर वार करती है। एक ही वार और विक्टर वहीं पे खत्म हो जाता है। अब कई माह बाद दिखाया जाता है, एलिज़ाबेथ महल के सामने खड़ी है। पूरा घर अब इसके नाम पर है। वो गाड़ी से उतरती है और जैसे ही रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती है तो पता चलता है वो प्रेग्नेंट है। उसकी लबों पर एक पुरइसरार मगर खफीफ सी मुस्कुराहट आती है। इसके साथ ही इस मूवी की कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।